Good morning, dear students. Welcome back to today's class. See, yesterday we had solved all the exercises like page number 16 and 17. Okay, so today we will see the new poem, The Swing. Okay, swing. You have to know that what is the swing. The swing. है ना? हम कभी भी क्या करते हैं, जो भी टॉपिक है we have to know about this meaning. Because if you don't know about the meaning of the topic, how we can recognize the what is in the whole poem or the lessons. Okay, so our topic is the swings. What is meaning of swing? It's झूला. बोलते हैं ना हम लोग, it's झूला. Okay, see, when you go to the park, there is so many swings. Okay, in the park, है ना? तो यहाँ पे क्या दिया है, warm up. How many of you go to play in the park? क्या बोला है वहाँ पे कि आपको how many of you go play in a park? आप जब पार्क में जाते हो, है ना? आप जब अपने पेरेंट्स के साथ पार्क में जाते हो, when you enter the park, you would see what there is so many trees, small even plants, as well as there are so many play swings, है ना? मतलब वहाँ पे क्या है, झूले भी हमको दिखाई देते हैं. तो उन्होंने बोला है कि इन द होल गार्डन, पूरे गार्डन में जितने भी आप झूले में मतलब झूले देखते तो उसमें खेलते हो क्या, ईच एंड एवरी वन स्विंग्स, डू यू हैव अ प्ले, ऐसा. तो हम लिख सकते हैं ऑल ऑफ देम, सभी. What do you have in your park? The seesaw, the swing and slide and the round boat. See, in the garden there are too many, क्या है, बहुत सारे वहाँ पे झूले दिए हैं अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ. ओके, उनमें से क्या है, द seesaw, है ना, द अप डाउन जैसे होता है. देयर आर two people can sit. उसके बाद द स्विंग, जो सिंपली क्या करते हैं, स्विंग होता है, अप एंड डाउन मतलब वो. उसके बाद स्लाइड, जो हम घसर पट्टी बोलते हैं वो. एंड उसके बाद क्या है, राउंड डोर, जो एक राउंड वहाँ पे मतलब हम लोग बैठते हैं और वो बहुत ही फास्टली वो क्या करते हैं, जस्ट चक्कर लगाते हैं. ओके, सो अभी आपको पता चल जाती है, इस पोयम ऑन द बेसिस ऑफ द स्विंग, मतलब ये झूलों के आधार पर है. ओके, सो थर्ड वन, विच इज योर फेवरेट, मतलब व्हेन यू एंटर द पार्क, व्हेन यू प्ले द अदर्स, जो भी मतलब वहाँ पे झूले वगैरह होंगे, वहां से सबसे ज्यादा आपका विच वन इज इट योर फेवरेट. ओके, फोर्थ वन, हु डज नॉट लाइक टू सिट ऑन अ स्विंग, मतलब सी, so many children, they are afraid the play on the swing and the slide. Why? Because they are afraid अगर वो गिर जाएंगे, खेलते खेलते if they are falling down, अगर वो गिर गए, उनको चक्कर आ गए, that's why. तो उन्होंने बोला है कि who does not like, मतलब ऐसा कौन है आपका फ्रेंड कि उसको बैठने के लिए अच्छा नहीं लगता. Please mention the name and cue why they are. Okay, so here we start the poem. Let's read. See, in the swing is the poet Robert Louis Stevenson. Robert Louis, it's a Louis. Robert Louis Stevenson. Okay, हम बोलते हैं R.L. Stevenson. Okay, he is a poet. Okay, so I am reading the poem. How do you like to go up and swing up in the sky so blue? Oh, I think it's a pleasant thing ever a child can do. Up in the air and over the wall till I can see so wide. Rivers and tree and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down.
See, in the whole poem is the basis on the swings, है ना. जो poet है, the poet is saying about the swing, झूले के बारे में उसने बोला है. Okay, so first stanza, how do you like to go up in a swing? In the sky is blue, the sky so blue. Oh, I think is a pleasant thing ever a child can do. तो इस स्टांजा में you just concentrate कि फर्स्ट स्टांजा में what the poet says about. Okay, so in the first stanza the poet is saying that how can we like to swing in the swing. Okay, मतलब वो बोल रहा है कि हमें बच्चों को या हमें कैसे अच्छा लग सकता है कि झूले पे ऊपर ऊपर जाना, है ना. एंड when, उसके बाद क्या बोले, up the sky. When the swing goes with the up the sky, it looks a blue. जब हम झूले पे बैठते हैं और जब वो तेजी से ऊपर नीचे आता है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पूरा आकाश नीला है. ओके, सो blue as is the man is touching the sky. ऐसा लगता है कि just we touching the sky when we swing ups and down, and when we go up in the air, that time we fail, we touch the sky, and sky is looks like a beautiful, it's a blue. Okay, so the sky is so blue, it is happy experience for all the kids, for all the children. All kids can do that. मतलब क्या बोला है कि कवि यहाँ पे बोल रहा है कि किसी को कैसे अच्छा लग सकता है कोई झूले में बैठे, क्योंकि तो डरावना भी हो सकता है या आनंदी भी हो सकता है, मतलब खुश भी हो सकता है. When we swing and when we goes up, तो that time we felt that we just touch the sky. हम क्या कर रहे हैं, आकाश को छू रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश को हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, हम वहां से जा रहे हैं, है ना. और आकाश कौन से कलर का दिख रहा है हमको, ब्लू. द स्काई इज सो ब्लू एंड वेरी ब्यूटीफुल. ओके, उसके बाद है up in the air and over the wall till I can see so wide, rivers and tree and cattle and all over the countryside. Pleasantness means क्या होता है, सुखद, शांत भी लिख सकते, शांत. उसका हम लिख सकते काम, CALM, काम, प्लीजेंट, एकदम शांत. पीसफुल, शांत हम लोग पीसफुल भी बोल सकते हैं एकदम से. पीसफुली या पीसफुल. ओके, एकदम शांत, सुखद, वैसे. तो यहाँ पे क्या बोला है, up in the air. When the poet is saying that when swing goes from the above the walls, जब हम झूले पे बैठे हैं, जो आकाश पाना जो बोलता है, जो राउंड वाला बहुत बड़ा जो झूला रहता है, या रोलर कोस्टर भी बोल सकते हैं. अगर if we are sitting on that roller coaster and the big झूला, so क्या होता है, जब वो ऊपर की तरफ जाता है झूला, है ना, when we swing, और कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही चौड़े दीवार के ऊपर से जा रहा है वो. so one can see everything for there as they are. जब वो झूला कहाँ से, जब वो झूला स्विंग करता है ऊपर की, मतलब जब झूला क्या होता है ऊपर की तरफ जब जाता है, तो ऐसा लगता है कि मैंने कोई दीवार क्रॉस की है ना. दीवार, क्योंकि दीवार क्रॉस थी एक्चुअली. जब स्विंग होती है तो ये एक दीवार है, तो उससे भी ऊपर मैं अपना झूला लेके जा रहा हूँ. और उस
जब मैं झूला ऊपर जाता है तो आई कैन सी, मतलब मैं देख सकता हूँ नीचे में कि मैं नदियाँ देख सकता हूँ, सो मेनी ट्रीज आई कैन सी, ओके, और इवन एज वेल एज आई कैन सी द कंट्री साइड्स, मतलब मैं नदी भी देख सकता हूँ, मैं बहुत सारे ट्रीज भी देख सकता हूँ, मैं छोटे छोटे प्लांट्स भी देख सकता हूँ, इवन आई कैन सी द गोट्स, मतलब वो जो बकरियां हैं, जो शीप्स है, वो क्या कर रहे हैं, गार्डन में से चर रहे हैं, मतलब वो अपना घास खा रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला है कि ऑल दीज आर रिवर्स, ट्री, ओके, एंड गोट्स, कैटल, ही कैन सी द होल साइड ऑफ द सिटी, मतलब शहरों के जो आजू बाजू का भी वो परिसर कवि देख सकता है when the swings on above the wall. Understood? Okay. Third one. Till I look down on the green garden green, down on roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. क्या बोला है यहाँ पे? See, the poet is saying that. यहाँ पे क्या बोला है? पोएट का बोलना ऐसा है कि the poet is saying that when the swings come and down, जब झूला नीचे और ऊपर जाता है, that time he can feel the small gardens. जब दूसरे स्टांजा में क्या था, जब झूला ऊपर जाता है तो ऊपर से वो नदियाँ, ट्रीज, कैटल्स, गोट सभी देख सकता है, और जब तीसरे स्टांजा में कवि बोलता है कि जब झूला ऊपर से नीचे आता है तो वो क्या कर सकता है, वो मतलब टच कर सकता है, वो देख सकता है कि नीचे भी छोटे छोटे गार्डन्स है, छोटे छोटे गार्डन्स को दिखाई दे रहे हैं। द गार्डन्स, ग्रीन गार्डन्स, एंड रूफ सो ब्राउन, रूफ मतलब वो जो धरती, वो जो है ना रूफ, वो क्या है, ब्राउन कलर की है। सो ओके, सो फील द स्पिरिट, देयर इज अ ब्राउन, फील द स्पिरिट इज देयर इज अ ब्राउन कलर, एंड आफ्टर सम टाइम आई गो अप एंड डाउन, मतलब वो क्या, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे कि जब मेरा झूला ऊपर से जाता है तो मैं क्या देख सकता हूँ, जब मेरा झूला नीचे में आता है तो मैं क्या देख सकता हूँ। द नेम, द पोएट से दैट व्हेन ही इज इन स्विंग, ही इज सिटिंग ऑन द रोलर कोस्टर, he can see when the roller coaster is up, that time we see the countryside, goats, river, trees, and the poet say that when swings came down, जब वो नीचे आता है, he can see the small planet, some small plants, and the roof is a brown. तो उसके बाद क्या होता है, again he fly up and down, मतलब और क्या हो रहा है वो, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो आ रहा है। So here the poet told us about his childhood when he enjoyed on the swings and roller coaster. कवि ने क्या बोला है यहाँ पे कि जब वो छोटे थे तब वो किस प्रकार से झूले में बैठ के उनको क्या फील होता था, वो कौन सी चीजें वो देख सकते थे या कौन सी चीजें वो नहीं देख सकते थे, उन्होंने वो हमको डिस्क्राइब किया, हमको बताया है यहाँ पे। आया आपको समझ में? तो ऐसी हमारी पोएम है कि ये सब किसके ऊपर है, इट्स अ स्विंग, मतलब प्ले के ऊपर है। जो भी हम प्ले करते हैं, खेलते हैं पार्क में, वो सभी चीज़ों का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम। सी स्टूडेंट्स, इन द पेज नंबर 19, the poem number 2, the swing, you have to solve all the 4 question answers. Okay, first one, how many of you go play in the park? आप किस प्रकार से प्ले में, मतलब कितने ऐसे चीजें कि वहां पे आप खेल सकते हैं। ओके, what do you have you in the park, मतलब आप कौन सी ऐसी चीजें हैं वो पार्क में देखी जा सकती या देखते हो। which is your favorite, one of them tell us which is your favorite, आपको एक बताना है। Who does not like to sit on a swing? If your friend, if your brother and sister, they are not sit on a swing, अगर वो झूले पे नहीं बैठते हैं तो उनका रीजन लिखना है why। ओके, लिख सकते हैं because
he is afraid. Okay, मतलब वो डरता है. He is a fear for whom? तो swing, sit on a swing. Okay, तो ये आपको solve करने हैं, है ना? So you just learn poem by heart. You have write down the poem on your notebook as well as the hard words. Okay, after that we will solve the question answer based on the swing poem. Okay, so till then you have to learn the poem. Okay, so see you tomorrow. Bye bye.